code this problem, use the algorithm. बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है. This is something that comes out of experience only. 96 को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के b square plus c square plus 2xyd. Anyone who has solved a problem which is not seen before, अगर वो खुद से solve किया है, it is going to give you immense happiness. Someone who is watching this on YouTube might find a better solution. Hi everyone, good evening, Jai Hind. I am going to discuss a very interesting problem which was given to me by one of my students, and when he gave this problem to me, I thought this was very trivial and I will be able to solve this very quickly. But again, as I spent more time on it, I realized that it is not that easy a problem, and I had to do a lot of things, including asking ChatGPT, and I'll be sharing the results also. But it took me a couple of days to come out with the solution, at least the algorithm. The solution, complete solution, I have still not solved. वो मैंने तुम लोगों के लिए रखा हुआ है बचा के. So basically what I'm going to do is I am going to tell you how did I approach this problem, how did I go about it, and किस तरीके से मैंने कैलकुलेशंस की, किस तरीके से मैंने गूगल शीट यूज की, एक्सेल शीट यूज की, जिसका तुम भी फायदा उठा सकते हो, and ultimately was able to come up with a partial solution. Now what I want you to do is, particularly the students who like mathematics, they can, on the basis of the algorithm which I'm going to discuss in today's class, they can complete the solution. Or also for people who like coding, they can always code this problem, use the algorithm which I'm going to teach, and ultimately find the solution, complete solution to this answer. Okay, so of course one of the solutions is very trivial, 6, 8, 10, वो कि बहुत सारे बच्चे चैट पे भी बोल देंगे, and ये हम मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया था. But again, the problem is this the only triangle? Is 6, 8, 10 the only triangle with integral sides having area 24? Okay, so this is what we are going to discuss in today's session. So the problem is find a triangle with integral sides whose area is 24. एक ऐसा triangle निकालना है जिसकी sides integral है, area 24 है. Now, before while I was solving this problem, I also took the help of ChatGPT, and this was the most stupid answer a search and intelligent engine can give. Right, so ChatGPT ने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया? Let's test a triangle with sides 5, 5 and 6. हीरो फॉर्मूला निकाला, एरिया 12 आया, तो उसने बोला चलो हम साइड इंक्रीज करके देख लेते हैं. 5, 5, 8 किया, एरिया 12 आया, उसने बोला चलो थोड़ा सा और साइड इंक्रीज करके देख ले. Randomly he put 6, 8, 10 and ultimately he answered 24. He was very happy. I have solved it. Right, so this was the most stupidest solution any engine can give. मैंने डीप सीक से भी पूछा, डीप सीक ने भी सिमिलर टाइप का ही रिजल्ट बताया. ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड क्या थॉट आया वहां से मैं शुरू करता हूं. सो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आया, 24 तो बहुत ही सिंपल सा नंबर लग रहा है यार, तो 24 है. पहला थॉट मेरे पास यही आया कि यार व्हाई नॉट ट्राई, गिव इट अ ट्राई इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल के केस में देखते हैं कि भाई इसको बेस कर दो, इसको ए कर दो, सो हाफ इंटू ए बी इज 24, giving us AB as 48. AB as 48. अगर AB 48 है, right angle triangle है, let's say this is C, तो C is going to be A square plus B square. C square is equal to A square plus B square. So मैंने यहाँ पे अलग अलग चीजें देख ली, 2 24, 3 16, 4 12, 6 8, और मैंने यहाँ पर पाइथागोरस से ये निकाला सब में, तो यहाँ पर आएगा रूट ऑफ 144 प्लस 16, यहां पर आएगा रूट ऑफ 256 प्लस 9, यहां पर आएगा रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 4, एंड यहां पर आएगा रूट ऑफ 48 स्क्वायर प्लस 1. इस केस में सिर्फ यही एक इंटीजर बन रहा है, दिस इज द ओनली इंटीजर. सो यहां से ये मुझे समझ में आया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, आंसर 6, 8, 10 है. बट अगेन मैं इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था. ठीक है कि 6 से 10 तो आ गया, this is a triangle 6, 8, 10 जिसकी इंटीग्रल साइड्स है एरिया 24 है. परफेक्ट, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. बट अगेन, इज देयर एनी अदर ट्रायंगल? Maybe the triangle is acute angle, maybe it is obtuse angle triangle, but an area 24 with integral sides. Is there any other triangle? Right, so इस ये quest शुरू हुई and ultimately thoughts पाइथागोरस के अलावा जो आए मेरे दिमाग में एरिया निकालने के was Hero's formula हाफ BC साइन है ABC by 4R. तो ये थॉट्स है कि यार एरिया के फॉर्मूले जो मुझे पता थे, एक तो कैपिटल आर से रिलेटेड है, एक स्मॉल आर से भी रिलेट हो सकता है. R is delta by S.
हाफ बीसी साइन है, हीरोज फॉर्मूला पाइथागोरस। तो पाइथागोरस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया था, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लोर पाइथागोरस। मुझे पता था कि पाइथागोरस का जो आंसर है 6 8 10, ये ट्रायंगल मैं ऑलरेडी निकाल रहा हूं, बट इज देयर एनी अदर ट्रायंगल, वो ढूंढना था। अब हीरोज इज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट वांट टू अप्लाई बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस को भी अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी बाय 2, इट बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। सो हीरोज मेरे दिमाग में हमेशा लास्ट चॉइस थी। इट वाज ऑलवेज द लास्ट चॉइस कि हीरोज मैं तब करूंगा जब कुछ भी ऑल्टरनेट बचेगा, तब देखें, फिर हम कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। देन था कि यार हाफ ए बी साइन है, क्या कैन आई यूज दिस हाफ बी सी साइन है। सो बेसिकली अगर ये बी है, ये सी है, ये कैपिटल ए है, सो हाफ बी इंटू सी इंटू साइन ए, दिस इज 24। सो दैट मीन्स बी इंटू सी इंटू साइन ए इज 48। b इंटू सी इंटू साइन ए इज 48, b इंटू सी इंटू साइन ए 48। b और c अगर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो साइन एक रैशनल नंबर होगा। अब साइन ए रैशनल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1/2, 1/3, 2/3, 2/4, 2/5, एनीथिंग, इट कैन गो टू एनी लेंथ। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट वांट टू ट्राई आल्सो, यार ये तो साइन ए ट्रिग्नोमेट्री से वैसे ही मैं थोड़ा सा भागता हूं, हमेशा भागता हूं, नॉट एज अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट। जब मैं खुद सॉल्व करना होता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री समथिंग जो मैं अवॉइड करता हूं। पहले मैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री बाकी चीजें लगाता हूं, सिंथेटिक ज्योमेट्री लगाता हूं, कुछ नहीं होता, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं। सो ट्रिग्नोमेट्री हैज नेवर बीन माय इंक्लिनेशन टू गो टू, सो मैंने इसको रद्द कर दिया। ए बी सी बाय 4r, ए बी सी अगर इंटीजर्स हैं, बाय 4 इंटीजर है, r एक सर्कम रेडियस है 24। सो बट r में चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, आर में चीजें और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं बिकॉज कैपिटल आर के फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं। साइन रूल से आ सकता है कैपिटल आर का फॉर्मूला 4r साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2 आ सकता है, अगेन उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। सो आई वांटेड टू अप्लाई अवॉइड दिस आल्सो। इससे सॉल्व कर चुका हूं मैं, इससे एक आंसर निकल चुका है, तो बचा सिर्फ हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे पास अल्टीमेटली कोई चॉइस नहीं थी बट टू गो टू हीरोज फॉर्मूला ओनली, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। हीरोज फॉर्मूला के पास गया तो मुझे दिखाई दिया अगर साइड जेबीसी है, अगर साइड जेबीसी है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 24 इज, ठीक है, मैं थोड़ा सा, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल is root of s, s minus a, s minus b, s minus c। ठीक है, साइड्स एबीसी हैं तो एस को हटाना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा था इसको हटाने का, बट अगेन दिस इज समथिंग आई हैड नो चॉइस। सो एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस माइनस ए वुड बी बी प्लस सी माइनस ए बाय 2। S minus b was a plus c minus b by 2, and this was a plus b minus c by 2, c by 2। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल A बोल देते हैं। लेट्स से दिस इज कैपिटल A फॉर सम टाइम। ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, तो 4a इज इक्वल टू इन चारों को मल्टीप्लाई करना। अब इन चारों को मल्टीप्लाई मैंने बहुत बार किया हुआ है, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो कि इस चीज को सिंप्लीफाई करना सिखाते हैं, एंड अगर तुमने हल्का फुल्का रैशनलाइजेशन चीजें पढ़ी हुई हैं तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस। तो पहली दो को तो बहुत सिंपल है, a प्लस बी, सॉरी b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए। सो इसको मैं स्क्वायर भी बोल देता हूं, लेट्स से स्क्वायरिंग बोथ साइड आल्सो। b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए इज b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां पर साइन ए का सेम है तो ए स्क्वायर, तो ए प्लस सी माइनस बी, ए माइनस सी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह की चीज हमने बहुत बार सिंप्लीफाई की हुई है बहुत सारे सवालों के अंदर, तो ये मुझे कुछ अजीब सा नहीं लगा था। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि यार इसको भी जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है। दिस इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस ओनली, right? So I was not hesitant to multiply these because I knew that this is going to be a very symmetric expression and something which I've already dealt with in the past. So 4a whole square is equal to a square into this. So this is like ab plus ac whole square minus a to the power 4. इसको इससे कर दिया, फिर इसको इससे c plus b, c minus b, तो minus of c square minus b square whole square, एंड यहां पे प्लस आ जाएगा, प्लस AC
माइनस ए बी होल स्क्वायर। एंड ये भी सिंप्लीफाई करना बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ऑब्वियस चीज है ना, ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे ए बी ए सी माइनस ए बी होल स्क्वायर। सो कैन आई से दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab इंटू ए सी माइनस 2ab इंटू ए सी तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4 एंड यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस, नो, बहुत सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी गॉट। तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? वी गॉट 4a होल स्क्वायर। 4a होल स्क्वायर, a is 24 by the way, 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4, माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4। इनफैक्ट मुझे यार पता है कि यार इसको थोड़ा पॉजिटिव बनाओ, इसको नेगेटिव बनाओ, थोड़ा बेटर सेंस बनता है। सो दिस प्लस a4 प्लस b4 प्लस c4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, थोड़ा सा गलत हो गया, इट इज 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4। सो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज व्हाट वी गॉट। यहां पे मुझे ये भी दिखाया यार, इसको स्क्वायर बनते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, पढ़ा हुआ ना ये बचपन में, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, पढ़ा हुआ है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्लस 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 होता है, यहां पर माइनस 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 है, दिस इज द ओनली थिंग। बट अगेन इसको भी डील करना आता है 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर इसको भी डील करना आता है। यार 3 माइनस में की जगह, 3 माइनस की जगह अगर 2 माइनस होंगे ना और 1 प्लस होगा, देन आल्सो वी कैन मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, यहां पे अगर माइनस करता हूं यहां पे, तो अल्टीमेटली यहां पे z वाली 2 टर्म्स माइनस हो जाएगी। सो दिस इज आल्सो डूएबल, बट 3 इज नॉट प्लॉजिबल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 को माइनस ही रखते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं, ठीक है? सो 4a होल स्क्वायर, 4a होल स्क्वायर, यहां पर हमने लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर c स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर, यहां पर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर बना दिया, तो इधर 4b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो बेसिकली यहां पे माइनस था ना, इस माइनस को प्लस बना दिया, बिकॉज हमें पता है कि माइनस से को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो माइनस को जब मैंने प्लस बनाया तो उधर प्लस 4 हो गया, बिकॉज ओवरऑल यहां पे -2 हो जाएगा। इसका फायदा ये हुआ कि ये 4a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो जो 2 a वाली टर्म्स है वो नेगेटिव है, इज इक्वल टू 2bc होल स्क्वायर। यहां तक मैं आ गया और थम गया, ठीक है? तो इस चीज को मैं दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली दिस इज 4a होल स्क्वायर, 4a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc होल स्क्वायर। यहां पर आकर हम रुक गए। अब यहां से मुझे जो फील आई ना वो ये आई कि यार ये जो चीज है ना, दिस इज समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अगर एबीसी इंटीजर्स हैं तो ये एक इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा, और 4a हमेशा पता है हमें इंटीजर है, 4 into a is actually 96 because a is 24, 4 into a is already 96। तो हमें वो पता है कि दिस इज लाइक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दिस इज लाइक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने कुछ समय पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे एक सेशन लिया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर सेशन लिया था, जो हम अपने सेशन के अंदर लेवल 7 के अंदर नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ये इसमें मैंने ये प्रूव किया था दैट जिंदगी में दुनिया के अंदर जितने भी
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, इंटीग्रल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, दे आर ऑफ द फॉर्म x square minus y square 2xy x square plus y square. So all Pythagorean triplets in the primitive form, जितने भी दुनिया के अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है प्रिमिटिव फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, वो हमेशा इस फॉर्म के होंगे। प्रिमिटिव फॉर्म मतलब कोई, फॉर एग्जांपल 3 4 5 इज अ प्रिमिटिव फॉर्म, 3 4 5 इज अ प्रिमिटिव फॉर्म, 6 8 10 इज नॉट अ प्रिमिटिव फॉर्म। मतलब भाई सिंपल सी बात है, अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो ट्रिपलेट हो गए। तो कोई भी सिंपलेस्ट ट्रिपलेट्स हमेशा इस फॉर्म के होंगे। एंड इन जनरल अगर तुम और दुनिया के सभी करने हैं, चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे ना हो, वो इस फॉर्म के होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी, 2xy इंटू डी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी। सो दिस would tell you or give you all the Pythagorean triplets in the universe. ठीक है, इसमें एक और फॉर्म होती है, मतलब कंडीशन होती है that x and y should be co-prime and one of them is even, other is odd. एक इवन है x और y में से, दूसरा ऑड है और दोनों कोप्राइम होंगे। अब यहां पर तुम बेसिकली x और y कोई भी दो कोप्राइम उठा लो, 2 और 3 उठा लो, x और y 2 3, तो यहां पुट करोगे तुम्हें एक या 3 2 2 3 मतलब 3 2 एक ही बात है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, 2 3 3 2 एक ही बात है। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2 3 से एक ना कोई ट्रिपलेट मिलेगा, ठीक है, 2 7 से एक ना कोई ट्रिपलेट मिलेगा, 3 4 से ट्रिपलेट मिलेगा। तो ये दो नंबर्स कोप्राइम होना चाहिए, एक ऑड एक इवन होना चाहिए, तो इससे ट्रिपलेट हमेशा मिलेगा और एक प्रिमिटिव फॉर्म में मिलेगा हमेशा। बट अगर तुम d से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे के सारे ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। तो ये चीज मुझे पता थी, ठीक है, ये चीज मुझे पता थी, तो मैंने यही यूज की कि अगर ऐसा है तो ये जो तीन नंबर्स हैं 4a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड 2bc, ये किस फॉर्म के होने चाहिए, ये इसी फॉर्म के होने चाहिए। तो मैंने बोला पहला केस लेते हैं, केस 1, जब मैं 4a को करता हूं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू डी, ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2xyd एंड 2bc, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो था कि यार ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। सो अगेन ट्रायंगल कैन बी एक्यूट आल्सो, ऑब्ट्यूज आल्सो, तो यहां पे प्लस माइनस डाल दिया मैंने। एंड सिमिलरली केस 2, जब ये दोनों ऑपोजिट हो, मतलब 4a का वैल्यू प्लस माइनस 2xyd होगा, 2xyd होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू डी होगा, एंड 2bc का वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस डी होगा। ठीक है जी, ये दो केसेस में मैंने बोल दिया कि ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये हो और दो एक्सचेंज हो सकते हैं। मैंने अभी तक जो सॉल्व किया है, ठीक है, वैसे मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, बट तुम्हारे लिए अभी तक जो मैंने सॉल्व किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट किया है, ठीक है। तो तुम्हारा काम मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि तुम्हारा काम क्या है, इसको समझ के तुम्हें इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। इस पार्ट से मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, इस पार्ट को तुम्हें सॉल्व करना है, ओके जी। चलो इस पार्ट के ऊपर आते हैं। सो 4a का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। तो अगेन यहां पे लिख रहा हूं 4a is x square minus y square into d, b square plus c square minus a square is 2xy into d with plus and minus sign, and 2bc is equal to x square plus y square into d, ठीक है। इसको प्लस माइनस 2xyz। अब मैंने बोला यार इकलौती चीज जो मुझे दी हुई है और पता है वो ये है 4a is 96, सो d इंटू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई
इज 96। यहां से मैंने बोला कि यार यहां से मैं कुछ x और y की वैल्यूज निकाल सकता हूं, यहां से कुछ x और y की वैल्यूज निकालता हूं। इनफैक्ट 96 को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बहुत ही लिमिटेड तरीके हैं, गिवन दैट x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है वो x माइनस वाई से बड़ा है। d कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट d मैंने क्या स्टार्ट किया कि यार d छोटे से शुरू करते हैं सिस्टमैटिक वे में। अगर एक नंबर d है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 96 कैसे होगा? एक तो 196 से होगा, 248 से होगा, 3 32 से होगा, 4 24 से होगा, 5 हो नहीं सकता, 6 16 से होगा, 7 8 12 से होगा, बस 1 1 1 1 1 1। फिर बोला अगर ये 2 है, अगर d 2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 48 होना चाहिए, मिनिमम 2 अब मैं कर रहा हूं, मिनिमम 2, अदरवाइज ये रिपीट हो जाएंगे, मिनिमम 2। तो ये 2 48 24 3 16 4 12 6 8 2 2 2। और क्या होगा? मिनिमम अगर 3 है सो d x माइनस वाई x प्लस वाई, ठीक है। मिनिमम अगर 3 है, 3 96 बाय 3 इज 32, इन दो का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट 32 होना चाहिए। 32 कैसे होगा? 4 into 8, एक ही तरीका है। अगर मिनिमम 4 है 24, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 4 and 6, ठीक है। ऑफ कोर्स इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 96 है तो 1 इधर, ये 1 2 48 है, 2 इधर 1 इधर जा सकता है, ठीक है। बट अभी हम छोटे डी के साथ ही देखते हैं क्या होगा। छोटे डी के साथ मैंने देखा कि यार फील तो देखें कि आंसर पॉसिबल है या नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले मैंने यहां से वो चीजें हटा दी जो वायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई और x माइनस वाई हैव द सेम पैरिटी, इन दोनों का सेम पैरिटी होगा। पैरिटी मतलब अगर x प्लस वाई इवन है तो x माइनस वाई भी इवन होगा। फॉर एग्जांपल यहां से दिखाई नहीं दे रहा, यहां से दिखाई नहीं दे रहा। एंड अगर अभी मैंने d यहां पे रखा, हालांकि d एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, x माइनस वाई और d एक्सचेंज हो सकता है, x प्लस वाई तो इससे बड़ा ही होगा, बट x माइनस वाई और d एक्सचेंज हो सकता है इन केसेस में। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। वो अलग बात है कि x माइनस d को अगर मैं 3 रखता हूं, इसको 2 रखता हूं तो कैंसिल नहीं होगा, बट अभी मैंने d को यही मान के चल रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने d को यही मान के चल रहा हूं, बाकी सब चीजें हैं। तो ये कुछ केसेस रह गए। कितने केसेस टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 केसेस में 3 हट गए। हालांकि इसमें और केसेस होंगे, क्या होंगे? ये और ये एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। 4 इधर 3 इधर तो चलो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर तो एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पर तो एक्सचेंज नहीं होगा बिकॉज इवन है, बट यहाँ पे 3 इधर 1 यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पर जा सकता है 3 इधर 2 यहाँ पे जा सकता है। दिस इज द ओनली अदर केस, 3 इधर 2 इधर यहाँ जा सकता है बिकॉज x माइनस वाई और x प्लस वाई सेम पैरिटी के होंगे, ठीक है। 1 इधर नहीं आ सकता है बिकॉज 1 अगर इधर आ गया तो 24 में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, 24 d की तरफ जा सकता है, 24 कैन बी दिस, ठीक है, 16 कैन बी दिस, बट अगेन उस केस में पैरिटी सेम नहीं होगी यहाँ पे। तो तुम देख लेना, मैं इन केसेस पे सॉल्व करने की कोशिश, मैं तुम्हें एल्गोरिथम बता रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम खुद करना है, ठीक है। एल्गोरिथम बता रहा हूँ, तो ये चीज आ गई, ये कुछ वैल्यूज आ गई डी एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई की। अब मैंने सोचा यार यहां से ए बी सी कैसे आ सकता है, बैक कैलकुलेशंस करते हैं, यहां से a प्लस बी कैसे आ सकता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला केस है, लेट्स टेक दिस केस, इस केस को देखते हैं। अगर मेरे पास d है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, मैं कुछ और निकाल सकता हूं यहां से, मैं यहां से x और y निकाल सकता हूं। x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई भी है, तो x कितना होगा? सो x इज हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, x इज हाफ ऑफ x प्लस वाई x माइनस। सोच आ गई क्या क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/2 25 एंड ये 23 आ गई। इस केस में 28/2 14 एंड यहाँ पे 10 आ गया। इस केस में 22/2 11 एंड यहाँ पे 5 आ गया। 10 एंड 2 आ गया। 13 एंड 11 आ गया। 16 8 एंड 4 आ गया। 14 7 एंड 1 आ गया। इस केस में x और y 12/2 6 एंड 2 आ गया एंड 5 एंड क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। सो x और y आ गए। अच्छा, x और y अगर है मेरे पास, x और y अगर है, इंडिविजुअल x और y है, तो बोल सकते हैं, और d भी है मेरे पास, तो बोल सकते हैं यहां से मैं 2bc निकाल सकता हूं।
यहां से मैं 2BC निकाल सकता हूं। इनफैक्ट BC का वैल्यू मैंने बोला कि BC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई 2, बिकॉज मेरे पास x है, y है और d है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x y d है। तो यहां पे मैंने क्या BC का एक कॉलम बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई 2, ये सारा का सारा ये वैल्यू यहाँ पे BC की निकाल ली। अब मैं फंस गया दोबारा से कि BC तो आ गया, x तो क्या क्या है मेरे पास, x है, y है, BC है। अल्टीमेटली मेरे को ABC इंटीजर्स है या नहीं है वो निकालने हैं। सो BC आ गया। अब दिक्कत यहां पे ये हो रही है कि ये जो चीज है यहां पर अगर BC आ गया, B और C क्या है पता नहीं है, B और C क्या है पता नहीं। अब मेरा यहां पे काम शुरू हुआ। अब मैंने सोचा कि यार BC अगर आ गया, B और C तो इंटीजर ही है। फॉर एग्जांपल इसका BC सपोज यहां पर इस सिंपल का निकाल लेते हैं, इसका D1 है, इसका BC कितना होगा, एक्स स्क्वायर दैट इज 100 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 1 104 बाय 2, इसका BC है 52, BC 52 है। अगर BC 52 है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B एंड C इस केस में, B और C एक तो 152 हो सकता है, एक 226 हो सकता है, एक 413 हो सकता है, राइट। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B एंड C इंडिविजुअली। B और C की पॉसिबल वैल्यूज ये तीन है इस केस में। तो मैंने क्या किया, इन तीनों का A निकाल दिया। A कैसे निकालेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी A स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस 2xyd। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस 2xyd। अब देखो हर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास फॉर एग्जांपल 52 के तीन केसेस बनेंगे, 152, 226, 430। तो मैं एक बार 1 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर प्लस माइनस 2xyd, इसका xy ये पता है मेरे और d भी पता है, और एक बार माइनस से निकालूंगा मैं। तो एक वैल्यू प्लस से एक वैल्यू माइनस से, और देखूंगा कि किस केस में a इंटीजर बन रहा है। सो इट वाज अ लॉन्ग टास्क बट अल्टीमेटली मैंने किया, और इसके अलावा मेरे को और कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आया। अगर तुम लोगों के पास सोल्यूशन है तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बट दिस इज हाउ आई सॉल्व। ऑफ कोर्स इसके लिए देयर वर अ लॉट ऑफ केसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में 52 है तो ऑफ कोर्स इसके तीन सॉल्यूशन बनते हैं। तीनों के केसेस में a की दो वैल्यूज निकाली, एक प्लस से और एक माइनस से, और देखा कि किस केस में a इंटीजर आ रहा है। जिस केस में a इंटीजर आ रहा है वो मैंने वैल्यूज ले ली। तो अल्टीमेटली व्हेन आई डिड दिस ऑन अ गूगल शीट, एक्सेल शीट, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल जो मैंने केसेस बताए उसके d ये थे, x माइनस वाई की वैल्यूज, x प्लस वाई की वैल्यू। ये फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, x वाज दिस प्लस दिस अपॉन 2 दैट इज हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, y में माइनस आ गया। BC का फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, B says, यहां देख लेते हैं। सो B says x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर d बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई 2। सो गूगल शीट में लगाना बहुत ही सिंपल है। सो यहां पे इक्वल टू करके दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इंटू दिस अपॉन 2 और खींच दिया नीचे। अब इसमें देखो बहुत सिंपल सी चीज आ रही है कि यार ये BC की वैल्यू डेसिमल में है, विच वाज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि x और y डेसिमल में है तो BC भी डेसिमल। तो इन तीनों को तो सॉल्व ही नहीं किया मैंने, ठीक है, ये तीनों को सॉल्व ही नहीं किया। फिर अल्टीमेटली मैंने बोला कि यार अगर 577 है, 577 इज अ प्राइम नंबर, तो एक ही वैल्यू है B और C की। तो यहां से दो वैल्यूज निकाली A1 की पहली वैल्यू क्या निकाली मैंने, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2xyd, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2xyd। एंड दूसरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या निकाली मैंने, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2xyd, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी, और वहां पे माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसका अंडर रूट तो 1 और 577 में ये वैल्यूज है, और ऑफ कोर्स इनमें से कोई भी एक इंटीजर नहीं है। फिर मैंने बोला 148,
148 में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज थे 1 और 148, फिर 2 और 74, 4 और 37, सबको ट्राई किया। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है, बट मैंने सारी वैल्यूज ट्राई की एंड अल्टीमेटली किसी से भी इंटीजर नहीं आया। 73 में एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दोनों वैल्यूज इंटीजर नहीं आ रही। 52 में पॉसिबल वैल्यूज क्या थी? 152, जो कि मैंने दिखाया था यहाँ पे। 52 में तीन वैल्यूज पॉसिबल थी, 152, 226 एंड 413। सो 52 में जब मैंने ट्राई किया ना 413 से, तो आई गॉट दिस एज आंसर 4, 13, 15। इसका मतलब एक सोल्यूशन 15, 4 और 13 हो गया। जैसे ही आया ना बहुत खुशी हुई। सी अगेन, दिस इज what is the pleasure of problem solving, something which is new to you. You've not solved this before, you've not seen this before, you don't know the solution before, and if you're able to solve this problem, even though I use Google Sheet, but solve किया, बहुत खुशी होती है। And again, you would second me, anyone who has solved a problem which he has not seen before, अगर वो खुद से solve किया है, it is going to give you immense happiness, and this is what ultimately I found also. So 15, 4, 13 was another triangle, but again इसका मैंने फिर verify किया heroes formulas, ultimately the answer was coming out to be 2, and फिर मैंने इसका geometrical configuration भी देखा कि यार किस तरीके से हो रहा है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। And then 290 में मैंने सारी configuration start की, तय की। एक बार मैं 1 290 रखा, 2 145 रखा, 10 29 रखा, किसी से भी आंसर नहीं आया। 80 में अगेन सारी configuration स्टार्ट की, 8 10 से आंसर आ गया, 8 10 से आंसर आ गया, तो अगेन A B C is going to be 6 8 10, A B C is going to be 6 8 10, ठीक है। फिर 13 से अगेन 50 से आंसर नहीं आया, तो 50 से मैंने 150, 225, 5 10, 60 से दोबारा से सेम आ गया, 13 4 13 15। सो दिस इज द सेम ट्रायंगल ओनली, ठीक है। एक ही वैल्यूज अलग होगी, बट ABC का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गया, बट सेम ट्रायंगल है। एंड 52 से भी आई गॉट द सेम ट्रायंगल, 52 से भी आई गॉट द सेम ट्रायंगल। तो अगेन अभी तक इस टेक्निक से मुझे ये दो ट्रायंगल्स मिल चुके हैं। एक तो मैंने वैसे ही निकाल लिया था पाइथागोरस से, दिस वाज अनदर प्रॉब्लम, अनदर ट्रायंगल व्हिच वी गॉट 15 4 13 विद दिस टेक्निक विद द हेल्प ऑफ द गूगल शीट, ठीक है। ठीक है जी। नाउ तुम्हारा काम क्या है? तो उससे पहले बिफोर आई गिव यू द टास्क, तो पहले ये जो ट्रायंगल है 6 से 10, तो आई थिंक इज सॉर्टेड। 6 से 10 ट्रायंगल इज सॉर्टेड। So this is 6, this is 8, this is 10, this is right angle triangle. The another triangle that we got was 13 4 15 triangle. 13 4 15 triangle. तो मैं देख रहा था यार ये किस तरीके से बन रहा है। तो मुझे ये ट्रायंगल पता है 5 12 13. We know this triangle 5 12 13, and we know another triangle 9 12 15. 9 12 15. So 5 12 13 कुछ इस तरीके से है। So 12 5 13 and 9 12 15 कुछ ऐसा होगा, बड़ा है थोड़ा सा, पर हाइट सेम है, ठीक है। These are two right angle triangles. तो मैंने बोला कि यार इसको कंबाइन करके ये ट्रायंगल बनाया जा सकता है क्या? Can we combine these two and form this triangle? तो मैंने बोला कि यार ये जो ट्रायंगल है ये यहां पर लगा दो, ठीक है। मतलब 5 12 तो बना ही हुआ है, यहां से 5 लेंथ उठाओ, यहां से 5 लेंथ उठाओ और ये ड्रॉ कर दो। सो अल्टीमेटली कैन आई से दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 13 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4। तो ये हमारा ट्रायंगल है जिसका एरिया 24 है। ये हमारा ट्रायंगल है जिसका एरिया 24 है। सो दिस इज क्लियरली एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया 24 है। सो अल्टीमेटली आई बीन एबल टू फाइंड टू ट्रायंगल्स एज ऑफ नाउ। स्टिल द क्वेश्चन इज स्टिल नॉट सॉल्व्ड डेलिबरेटली इन दिस पर्टिकुलर सेशन। मैंने सॉल्व कर लिया है, इस सेशन के अंदर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आधा क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए, बिकॉज अल्टीमेटली द आइडिया ऑफ दिस चैनल, आइडिया ऑफ मी टीचिंग यू इज टू मेक यू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना है, बिकॉज पूरा सोल्यूशन देने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सॉल्व कर लिया है, तुम्हें मुझे बताना है कि इस दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा डज देयर एग्जिस्ट एनी अदर ट्रायंगल? इन दोनों के अलावा क्या और कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है जिसका एरिया 24 है? नंबर 1। अगर करता है तो अगेन यू कैन अप्लाई द सेम एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम क्या है? एक तो अभी हमने जो लिमिटेड चीजें की थी
जो डी की वैल्यूज अगर तुमने नोट किया, दे वर वेरी स्मॉल। ठीक है, हमारे सोल्यूशन के अंदर जो डी था, इट वाज वेरी स्मॉल, 1 2 3 4। हो सकता है कि डी बड़ा हो सकता है कि यार ये, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये एक्सचेंज हो जाए, 2 यहां पर एंड 6 यहां पर, 2 यहां पर 6 यहां पर, ये सब चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो अगेन अल्टीमेटली तुम्हें सारी वैल्यूज के लिए ये निकालना है, नंबर 1। नंबर टू, अभी जो दूसरा केस स्टार्टिंग में हमने एक केस क्या लिया था, ये वाला, मैंने 4a को इससे इक्वेट किया था। हो सकता है कि 4a ये हो एंड ये वाला वैल्यू ये, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें। एंड समवन हु नोस कोडिंग, अगर जिसको कोडिंग आता है तो वो कोडिंग के जरिए इसी एल्गोरिथम को लगाकर अल्टीमेटली आंसर फाइंड कर सकता है। द ओनली थिंग जो उसको करना है इस कोडिंग के अंदर इस यहाँ पर b इंटू सी, अगर इंटीजर है तो ही हैज टू चेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b एंड c, एंड अल्टीमेटली फॉर्मूला तो वही है। ठीक है, फॉर्मूला तो गूगल शीट फॉर्मूला है। सो अल्टीमेटली ये चीज कोडिंग के थ्रू आराम से सॉल्व की जा सकती है। इफ यू नो कोडिंग, यू कैन प्रोबब्ली मेक अ कोड एंड पुट दिस इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर एबल टू सॉल्व, तालियां मारेंगे तुम लोगों के लिए। ठीक है, आई एम श्योर मैंने ये टास्क ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को दे दिया, अपने इंटरनल स्टूडेंट्स को दे दिया है, एंड दे हैव कम अप विद अमेजिंग सॉल्यूशंस, coded solutions, and of course I'm sure you are also going to be able to do this, right? So again, the idea of all of these contests is problem solving. So all of these contests teaches you basic problem solving, logic, applying. ठीक है, तो देखो, the problem which has already been solved, it has no use to human values. It is anyways going to be solved by AI. तो अल्टीमेटली ये जो तुमने देखा किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, हो सकता है दिस माइट नॉट बी द बेस्ट सोल्यूशन अभी के लिए। दिस इज द ओनली सोल्यूशन दैट आई हैव डिस्कस्ड दिस विद सम ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स आल्सो, एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई हैव गॉट। हो सकता है समवन हु इज वाचिंग दिस ऑन YouTube might find a better solution. You can always contact me on Telegram, or you can put that your solution in the description, and this is what we call problem solving, right? So of course we're proud of all these students who made us proud. They have qualified INMO, and ये मैं हर सेशन में बताता हूँ that the things that Indian government are doing. So students who are able to clear INMO, they get direct admission into these colleges: IIT Bombay, IIT Madras, IIT Gandhinagar, IIT Kanpur, ISI Kolkata, ISI Bangalore, CMI, and IIT Hyderabad. They get direct admissions into these colleges. Direct admissions into these colleges. Okay. Okay. And of course, देखो, Olympiad main idea is building logic, building problem solving skills. बाकी सब देखो, आज के इसमें सेशन के अंदर there is no formula. The only formula that we used and applied was Hero's formula that you studied since class 6th, right? Other than that, it was pure logic and nothing else, right? This is what we call problem solving skills. अगर ये है, तुम्हें कोई भी fancy stuff नहीं चाहिए. You don't need any fancy stuff. And of course, these are the different levels that we have in Vedantu. Level 4, 5, 6 जो है, इनके नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं अगले 15 दिनों के अंदर. So if you are seeking admission, अभी पुराने वाले बैचेस में नहीं लेना. Just wait for the announcement. 4, 5, 6 new batches are getting launched, and you can always take admission. And for level 7 का नया बैच नहीं है, but level 7 को ट्रंकेट कर दिया है, in the sense that we are only going to cover number theory and geometry and combinatorics in this batch which is coming up. It is going to start in 12th of May, and going to be taken by me and Chetan sir. This is 2 days a week, Monday and Wednesday. And number theory, combinatorics, and the 90% of the syllabi of IOQM, which is not there in JEE, we are going to cover in this particular thing. Right, so the price is 6,000. The link is in the description box. You can always take that. Hope you've enjoyed the session. Take care. God bless you. And like kar dena session ko. Bye everyone.